Hello student, welcome to Divakar Education Hub. I Neha Miklani. Today I am just going to completely cover the topic of types of research part 2. This is my second video on this topic. In my first video I have discussed the two types of the research, that are the types applied research and the basic research, and we have also differentiate the both types with the help of the some suitable examples also. Now we are going to discuss the third and fourth method of the types of research. Let's start our topic. Starting my videos, I just want to say that just get enrolled yourself in the Divakar Education Hub, and you can get most reliable data for your net preparation on the topics or on the subjects on commerce, management, education, HRM, economics, English, home science, law, psychology, environmental science, computer application, library science, political science, sociology, philosophy, physical education. And you can also get the sample PDFs from the Divakar Education Hub. And for any query, you can call on the number which are given on the screen. Let's start with our topic with the help of the third types of research, that is the correlation research. Before correlation research, there are the two types of research, that are the applied research and basic research. So, correlation research refers to a systematic investigation or statistical study of a relationship among the two or more variables without necessarily determine cause and effect. Correlation research is the research that is the study related to the statistical data only. When the two variables relationship has been found out, like price and demand, price and supply, price and cost of the production, cost and revenue, and all the two variables which are interrelated, and we have to find the relationship between these two variables and find out that relation with the help of the correlation research. It seeks to establish a relation. इसका मेन फोकस किस चीज़ पे होता है? एक रिलेशन क्रिएट करना है, ठीक है, एसोसिएशन क्रिएट करनी है, को रिलेशन करना है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स के बीच दैट डू नॉट रियली लेंड देमसेल्फ टू एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन, और जो एक दूसरे के साथ मैनिपुलेट नहीं करते हैं. सो बेसिकली दिस टाइप ऑफ रिसर्च का मतलब क्या होता है? जब हम दो वेरिएबल्स, दो फैक्टर्स के बीच का रिलेशन जब हम फाइंड आउट करते हैं विदाउट नोइंग द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ दैट रिलेशन, और find out the relation with the help of the statistical techniques, this is called the correlation research. So for example, जैसे हम एग्जाम्पल इसमें ले रहे हैं, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस हमने टेस्टिंग करनी है. लिसनिंग टू म्यूज़िक लोअर ब्लड प्रेशर लेवल, हमने म्यूज़िक को सुनना है लोअर ब्लड प्रेशर लेवल का. सो देर आर टू मेथड्स होते हैं हमारे पास रिसर्च कंडक्ट करने के लिए. एक होता है एक्सपेरिमेंटल, एक होता है सर्वे. दो तरीके से हम कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है? ग्रुप सैंपल्स आर टेकन एंड मेक वन ग्रुप लिसन टू म्यूजिक देन कंपेयर टू बीपी लेवल. एक ग्रुप का सैंपल लेते हैं और दूसरे ग्रुप के साथ उसको कंपेयर करके चलते हैं और बीपी लेवल को चेक करते हैं. सर्वे, इसमें एक सर्वे ले सकते हैं हम. आस्क पीपल हाउ दे फील, जब पीपल को हम सीधा बोल सकते हैं कि भाई फील करो. या तो एक तरीका है आप म्यूज़िक ब्लड सैंपल्स का म्यूज़िक उनको उनकी मतलब बीपी की जो उनका ब्लड प्रेशर का जो साउंड है उसको हमने सुनना है. तो इसको सुनने के दो तरीके हो सकते हैं. एक तो आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर लो, लेबॉर्ट्री में जाकर स्टडी कर लो. एक या फिर सीधा डायरेक्ट जो आपके पेशेंट्स हैं उनसे सर्वे ले लो. सो एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा कि आप एक ग्रुप का आप ब्लड सैंपल लोगे और दूसरे ब्लड ग्रुप के साथ उसको कंपेयर करके चलोगे. सर्वे में क्या होता है? आस्क पीपल को ही देखेंगे वो कैसा फील करते हैं, वो ज़्यादातर सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, फिर उन चीज़ों को हम कंपेयर करके चलते हैं. सो दैट इज़ अ कोरिलेशन रिसर्च. सो इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. सो पहला एडवांटेजेस क्या है?
क्या होता है, कैन कलेक्ट मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनी सब्जेक्ट एट वन टाइम। एक ही टाइम पे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को लेके चलते हैं। देखो एक्सपेरिमेंटल करके चलते हैं तो ज़रूरी नहीं बीपी लेवल, ब्लड सैंपल लिया, ब्लड लेवल से आप बहुत कुछ और भी अदर इन्फॉर्मेशन को भी आप लेके जा सकते हो। तो आपको और भी किसी और भी फैक्टर से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो और गेट कर सकते हो। कैन स्टडी ए वाइड रेंज ऑफ वेरिएबल, एक ही वेरिएबल से ही नहीं, आप बाकी अदर वेरिएबल्स के थ्रू भी आप स्टडी कर सकते हो और देयर इंटर रिलेशन, और उनके इंटर रिलेशंस को आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो स्टडी वेरिएबल दैट आर नॉट इजीली प्रोड्यूस्ड इन द लेबॉर्ट्री। ऐसे वेरिएबल्स को हमने स्टडी करना है जो कि ईजिली प्रोड्यूस नहीं किए जाते लेबॉर्ट्री में। सो दैट आर द एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कोरिलेशन डज नॉट इंडिकेट कॉशंस। ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस दैट द कोरिलेशन जो होता है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को कंसीडर करके नहीं चलते हैं। ठीक है, सो दैट आर द ड्रॉबैक ऑफ दैट स्टडी। नेक्स्ट, प्रॉब्लम विद सेल्फ रिपोर्ट मेथड। अकेले का काम नहीं होता है, हमें जब स्टडी करनी होती है तो और भी अदर पर्सनस की भी हेल्प लेनी पड़ती है और उनके थ्रू भी काम करना पड़ता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स विद द सेल्फ रिपोर्ट मेथड, तो सेल्फ रिपोर्टिंग मेथड के थ्रू भी हमें काम करना पड़ता है। सो दैट आर द बेसिक डिसएडवांटेजेस। सो अप्लाइड रिसर्च में हमने क्या डिस्कस किया है, व्हेन वी आर डूइंग लेबॉर्ट्री रिसर्च, साइंटिफिक वे से जब हम रिसर्च करते हैं तो वो हमारी अप्लाइड रिसर्च हो जाती है, इसमें हम थियोरी डेवलप करके चलती है। बेसिक रिसर्च में हमने क्या चीज़ डिस्कस की है, बेसिक रिसर्च में हमने ये चीज़ डिस्कस की है, हम कोई थियोरी डेवलप नहीं करते हैं, एक हम नई नॉलेज को लेके आते हैं साइंटिफिक वे से। जब कोई एक साइंटिस्ट अपनी क्यूरियोसिटी को जगा के कुछ नई नॉलेज को गेन करना चाहता है तो वो एक बेसिक रिसर्च का पार्ट हो जाता है। कोरिलेशन रिसर्च में जब हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ जब रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो इस तरीके की रिसर्च को हम कोरिलेशन रिसर्च कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट रिसर्च, दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च है, ये भी बेसिकली इसी टेक्निक्स को हम यूज़ करके चलते हैं, एक्सप्लोरेटिव और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, descriptive research refers to the research that provide an accurate portrayal of characteristic of a particular individual, situation or a group. Descriptive research also known as statistical research. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का दूसरा नाम स्टैटिस्टिकल रिसर्च होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, हम एक एक्यूरेट पोर्ट्रेट तैयार करते हैं। पोर्ट्रेट हम बोलते हैं ना कि भाई अपने माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट करनी है और एक्यूरेट रिजल्ट, एक्यूरेट पोर्ट्रेट तैयार करना है। ठीक है, तो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रॉब्लम पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड या उस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड या फिर उस ग्रुप से रिलेटेड एक पर्टिकुलर पोर्ट्रेट जब हम तैयार करके चलते हैं। सो दैट इज़ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, सो दीज स्टडीज आर ए मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग न्यू मीनिंग। ये स्टडी बेसिकली इस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है कि हमने कोई नई चीज़ों का मीनिंग निकालना है। वट एग्जिस्ट, इस चीज़ को डिस्क्राइब करना है हमने। वट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट कर रहा है। डिटरमाइनिंग द फ्रिक्वेंसी विद समथिंग अकर्स, जो चीज़ हैपेंड हुई है उनकी क्या फ्रिक्वेंसी रही है, किस फ्रिक्वेंसी के साथ वो हैपेंड हुई है। एंड कैटेगराइजिंग इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ कैटेगराइज जब हम करते हैं तो इस टाइप ऑफ रिसर्च को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डील्स विद एवरीथिंग दैट कैन बी काउंटेड इन स्टडी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक ऐसी स्टडी होती है जिनको काउंट किया जा सकता है, जिनको स्टडी किया जा सकता है, एंड विच हैज़ एन इम्पैक्ट ऑफ द लीव्स ऑफ द पीपल इट डील्स विद। और ये इम्पैक्ट उनके पीपल के ऊपर इम्पैक्ट जो पड़ रहा है, उनके ऊपर जो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनके थ्रू हम इनको स्टडी करके चलते हैं। देखो शॉर्टकट में हम इसको बताते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है उसमें क्या होता है, हम डिस्क्राइब करते हैं। जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइबिंग वे से लेके चलते हैं, प्रॉपर एक पोर्ट्रेट तैयार करते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू हम जब जो भी है हमें क्रिएट हुई है वो पूरा पोर्ट्रेट तैयार करते हैं, उसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं एक प्लेस पे एक्सीडेंट लगा हुआ है, उस एक्सीडेंटल एरिया पे जाके वहाँ पे हम एक अपनी इमेजिनेशन तैयार करते हैं कि भाई कैसे हुआ था, कैसे हो सकता था, कैसे पड़ा, कितने टाइम पे हुआ,
फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे एक्सीडेंट होने की, और अदर थिंग्स। जब हम ऐसी चीज़ों को बिल्कुल पोर्ट्रेट तैयार करके एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। व्हाट एग्जिस्ट, इसमें वही चीज़ देखी जाती है, क्या एग्जिस्ट, क्या चीज़ हो चुकी है, ठीक है, और इनका क्या इम्पैक्ट रह चुका है लोगों के ऊपर। इस चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिस्टिकल रिसर्च, ठीक है। फॉर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंडिंग द मोस्ट फ्रीक्वेंट डिसीज दैट अफेक्ट द चिल्ड्रन ऑफ ए टाउन। एक ऐसी डिसीज़ हमने फाइंड आउट करनी है जिनका मेन अफेक्ट चिल्ड्रंस के ऊपर पड़ रहा है, उस शहर में उन बच्चों के ऊपर कितना अफेक्ट पड़ा है उस डिसीज़ का। द रीडर ऑफ द रिसर्च विल नो व्हाट टू डू द टू प्रिवेंट द डिसीज दस। और वहाँ पे जब एक रीडर होता है वो इस चीज़ को सोच रहा है कि भी इस डिसीज़ के की प्रिवेंटेशंस क्या है। मोर पीपल लिव ए हेल्थी लाइफ, कि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थी लाइफ जी सकें। सो एग्जाम्पल्स क्या है इसकी, कि इसमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि उस टाउन में उस डिसीज़ से ज़्यादा चिल्ड्रन बीमार हो रहे हैं। इसके जो है रीडर्स को ये जानना चाहते हैं कि उनको प्रिक्योर कैसे किया जा सकता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी लिविंग जी सकें, ठीक है। सो दैट आर द एग्जाम्पल, कि इसमें ये चीज़ आती है व्हाट एग्जिस्ट एंड व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर, और कितनी फ्रीक्वेंसी से वो चीज़ जो है अकर हुई है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन हमने उसके थ्रू लेनी है। So now come to the advantages and disadvantages of this descriptive research. The advantages are the pupil individual studies are unaware so that they naturally as they usually do in everyday situation. लोग जब यहाँ पे स्टडी करने के चलते हैं, जब इस तरीके की स्टडी को करने को जाते हैं, तब वो पहले बिल्कुल अनअवेयर होते हैं उस सिचुएशन से रिलेटेड, पर जब वो इस स्टडी के साथ घुसते रहते तो उनको और भी ज़्यादा नॉलेज गेन होनी शुरू हो जाती है। तो दैट इज़ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है क्योंकि इसमें इमेजिनेशन ली जाती है, घर पे बैठ के काम करना होता है, और कोई रिजल्ट हम कंक्लूड तो करके चलते नहीं है, एक सजेशन तो हम आगे नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है डिस्क्राइबिंग नेचर ही होता है, तो ऑब्वियसली टाइम भी कम लगेगा और आपकी कॉस्ट भी इसको करने के लिए कम लगेगी। सो कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ नोट्स फॉर डिटेल स्टडी। इस तरीके की स्टडीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा नोट्स प्रिपेयर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ वे से हम जाने की कोशिश करते हैं। सो एज इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एंड नॉट मेक एनी कंक्लूजन। इस तरीके की स्टडी में हम जो है सिर्फ एक डिस्क्राइबिंग नेचर इसमें जाते हैं, सिर्फ हम डिस्क्राइब करते हैं, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालते। जैसे मैंने पहले ही बताया, इस तरीके की स्टडी में आप कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालते हो, आप सिर्फ डिस्क्राइब करते हो कि उस तरीके की स्टडी को कैसे डिस्क्राइब हमने करना है, ठीक है, क्या हो चुका है, बस उस सिचुएशन को एक पेपर फॉर्म में डिस्क्राइब करके चलते हैं, ठीक है। सो कंक्लूजन कोई नहीं होता है, तो इस तरीके की रिसर्च को स्टार्ट करना बहुत ईजी होता है एक रिसर्चर के लिए, ठीक है। नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रिक्वायर मोर स्किल। ऑब्वियसली कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब करना है, ब्रीफ वे से डिस्क्राइब करना है, तो इस तरीके की रिसर्च को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। सो डज नॉट आइडेंटिफाई कॉज बिहाइंड ए फिनोमिनन। इस तरीके की रिसर्च में हम इसका कारण नहीं जानते कि इसका कारण क्या है। जैसे मैंने एक्सीडेंट की एग्जांपल ली है कि एक्सीडेंट हुआ है, हमने जाना है वहाँ जाके, कैसे हुआ था, कितनी टाइमिंग में हुआ था, कौन कौन सी गाड़ियों के बीच में टक्कर हुई थी, कितनी डेथ हुई है, कितना इसका इम्पैक्ट हुआ है, कितनी फ्रिक्वेंसी में वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने जानी है। बट इसका कंक्लूजन नहीं निकाला है, ना ही इसके डेप्थ में गए हैं कि क्या कारण है उसी जगह पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोई हम इसके कॉज का जानने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ अ मेन ड्रॉबैक इन दिस स्टडी। रिस्पॉन्स रेट इज़ लो इन दिस रिसर्च। ज़्यादातर इस रिसर्च में जितना भी रिस्पॉन्स होता है लो होता है, क्योंकि हमने कोई कंक्लूजन तो निकालना नहीं है, कोई सजेशन भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इस तरीके की रिसर्च का रिस्पॉन्स भी लो होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ दिस रिसर्च कैन चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इस तरीके के रिसर्च का जो रिजल्ट होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, क्योंकि सजेशन कंक्लूजन डजेंट एग्जिस्ट इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च, सो
The study may take place long time or short time, and we describe this in a brief manner, but pupil not get any result from this type of study, and this result can be changed over a period of times. Clear? Now come to the next type of research, that is ethnographic research. Ethnographic research is basically related to the culture of the pupils. When we study the culture of the pupils or members, then this type of research is called ethnographic research. So this ethnographic research refers to the investigation of culture through in-depth study of members of the culture. It involves the systematic collection, description, and analysis of the data for development of theories of culture behavior. एथनोग्राफिक रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कल्चर की थ्रू इन डेप्थ स्टडी ऑफ मेंबर्स, उनके मेंबर्स की स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके का कल्चर अडॉप्ट करके चलते हैं। और इस तरीके की रिसर्च में हम ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन डाटा ही फॉलो करते हैं, क्वेश्चनियर को ही अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि कल्चर किसी का फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली उन पर्सन जो भी हम रिस्पॉन्डेंट ले रहे हैं उन रिस्पॉन्डेंट के क्वेश्चंस के थ्रू ही हम आंसर लेंगे। अगर हम क्वेश्चन उनको पुट ऑन करेंगे, अपने आप ऑब्जर्वेशन तो करके नहीं ले सकते हैं, सर्वे करके तो नहीं ले सकते हैं, तो ऑब्जर्वेशन हमारी विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चनियर के साथ ही होगी इस टाइप ऑफ स्टडी में। So it study pupil ethnic groups and other ethnic formation, their ethnic genesis, composition, resettlement, social welfare characteristics, as well as their material and spiritual culture. इस तरीके की स्टडी में हम ये सारी चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, मतलब इस तरीके के टॉपिक्स को हम लेके चलते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च में कि लोगों का हम एथनिक ग्रुप का क्या है, एथनिक फॉर्मेशन उनकी कैसी है, जेंसिस फॉर्मेशन कैसी है, कॉम्पोजिशन उनकी, रीसेटलमेंट कैसी है, सोशल वेलफेयर करेक्टरिस्टिक कैसे हैं उनके, एज वेल एज देयर मटीरियल एंड स्पिरिचुअल कल्चर उनका कैसा जा रहा है। सो इस तरीके की स्टडी के लिए हम डाटा जो कलेक्ट करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जर्वेशन, उनके साथ इंटरव्यू कंडक्ट करके और उनके साथ क्वेश्चनियर पुट ऑन करके। सो द पर्पस ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च इज टू अटेम्प्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग नेचुरली। इस तरीके की रिसर्च में हम ये चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हैपनिंग हो चुकी है उनके कल्चर में, नेचुरली क्या हैपन हो चुका है उनके कल्चर में, एंड इंटरप्ट देयर डाटा, और डाटा लेने की कोशिश करते हैं कि आगे फॉर्म्ड डाटा किस तरीके से उनका होगा। सो दैट इज़ एथनोग्राफिक रिसर्च। सो आज हमने जो है 3 टाइप्स की रिसर्च टाइप्स पढ़ी है, दैट इज़ द कोरिलेशन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च। सो इससे पहले हमने 2 रिसर्च पढ़ी है, अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ दोबारा से इनको। अप्लाइड रिसर्च में जब हम कोई थियोरी, कोई फॉर्मूला जनरेट करते हैं तो वो हमारी अप्लाइड रिसर्च का पार्ट होता है। बेसिक रिसर्च जब हम कोई नई नॉलेज लेके आते हैं, कोई नया सजेशंस लेके आते हैं, then it is a part of the basic research. Now come to the correlation research. When we find out the relationship between the two variables, वो वेरिएबल्स कोई भी हो सकते हैं, लेबॉर्ट्री में स्टडी करके या एक्सपेरिमेंटल किसी भी तरीके से स्टडी कर सकते, बट अब यू हैव टू कंपेयर द 2 वेरिएबल्स। अगर आप कंपैरिजन लेके चलते हैं, 2 स्टडीज़ का रिलेशनशिप लेके चलते हैं, तो वी विल स्टडी द कोरिलेशन रिसर्च। देन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, व्हेन वी डिस्क्राइब द सिचुएशन बट नॉट conclude it, not suggest it, and you have do the study only the describing the nature of that particular situation, then it is called the descriptive research. Ethnographic research, when we find out the cultural effect of the members of the respondent, then this is called ethnographic research. So एक एक रिसर्च का एक एक पॉइंट की वजह से वो एक दूसरे से कैटेगराइज की जाती है, तो इन चीज़ों को हमने अच्छे से समझना है कि वो कैसी कैटेगराइजेशन हो रही है और उसके हिसाब से हमने आगे स्टडी करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सो जब भी हम आगे रिसर्च प्रोजेक्ट लेके चलते हैं PhD लेवल पे या अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड जो भी हमारी डिग्री लेवल पे या कुछ भी हम लेके चलते हैं, तब जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये कैटेगराइज करनी पड़ती है कि हमारी रिसर्च जो है किस चीज़ का पार्ट है, कौन सी टाइप्स उसको में हम रिसर्च की यूज़ करने जा रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस टाइप्स इन ए ब्रीफ मैनर्स एंड डू सम मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड what are these differences of this research. ठीक है, so thank you so much about today topic.